Hello everyone and welcome to another Science 1 session on the chapter Chemical Reactions and Equations. As you know, what are we studying in this chapter is number 1, chemical reactions and its type. Then we will be studying about exothermic, endothermic reaction, what are the factors that affect any chemical reaction, what is oxidation, reduction, under which we will study about corrosion and rancidity, and in the end balancing a chemical reaction. इनमें से हमने पढ़ लिया कि what are the 4 types of chemical reactions. We also learned about exothermic, endothermic, किसमें heat देते हैं, किसमें heat अंदर लेते हैं. What are the factors affecting the rate of reaction, कैसे reaction की speed बढ़ा और घटा सकते हैं, which means we are going to move today to the next objective. We can start writing from here. The objective for today is we will be able to understand oxidation and reduction reaction. Okay, so I assume everyone should start writing in their notebooks from here. Now, starting with oxidation reaction. कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन तब कहलाएगा जब नंबर 1 या तो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, सेकंड या तो उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या फिर थर्ड क्राइटेरिया उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, ओके, तीनों में से कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि तीनों सेटिस्फाई हो, तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है अगर, then it is an oxidation reaction. Let's see an example of this. First case, Mg plus O2. This is an example of addition of oxygen. Mg में O2 add हो गया, so Mg is oxidized to MgO. Second, MgH2 में से H निकल गया. The hydrogen has been removed from here. And in the last example, you can see हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कैसे वैलेंसी डिटरमाइन होती है किसी भी एलिमेंट की. सो सोडियम इज 281, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 है. वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो स्टेबल स्टेट अटेन करे 28 का. इट इज गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव दे रहा है और खुद पॉजिटिव हो रहा है. सो सिंस सोडियम इज गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन्स, इट इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. तो ऐसे अगर आपको कोई भी रिएक्शंस दिखाई देंगे जिसमें या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, removal of hydrogen या फिर loss of electron, it is an example of oxidation. I hope everyone is writing whatever is coming on the screen. Moving ahead, reduction. Reduction is just the opposite of oxidation. तो इसमें क्या होगा? Either there will be addition of hydrogen or there will be removal of oxygen or there is gain of electrons. Okay, just the opposite of oxidation. Then it is a reduction reaction. Example, जब हम लोग वनस्पति घी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं. हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन. सेकंड, यू कैन सी CuO में से ऑक्सीजन हट गया और वो Cu बन गया. सो CuO हियर इज रिड्यूस्ड टू Cu विच इज कॉपर. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन विद एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 287, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो स्टेबल बन जाए. So it will take electron. It is taking electron, becoming more negative, gaining a negative sign. Gaining electron means reduction in this case. Okay. So let's try some examples. There is a table coming up on the screen. आपको इसको fill up करना है given in the pattern given over here. So you have to determine if it is losing or gaining electron and how many, and on that basis it is oxidation or reduction. So pause the video, write down the table, try this for yourself. Okay, let's see what is happening in each case. This is what is happening. Chlorine is gaining electron, iron is losing, aluminium is losing and sulfur is also gaining respectively 1, 2, 3 and 2 electrons. अभी कैसे याद रखें कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है? You can remember this abbreviation oil. आप OIL ऑयल याद रखो, जिसमें से O मतलब ऑक्सीडेशन, I मतलब is, L मतलब लॉस. सो ऑयल याद रखोगे तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, मतलब जहाँ जहाँ लॉस है वहाँ वहाँ ऑक्सीडेशन पुट कर दो, जहाँ जहाँ गेन है वहाँ वहाँ रिडक्शन पुट कर दो. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. लेट्स सी वन मोर टेबल ऑफ अ सिमिलर कैटेगरी, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसको उल्टा कर दिया गया है. इफ आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जाम्पल, Ag ऑलरेडी प्लस है. प्लस से जीरो चार्ज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्लस में और नेगेटिव दोगे तभी तो वो जीरो बनेगा ना. प्लस है और नेगेटिव दोगे तो वो बैलेंस होके जीरो बनेगा. इट मीन्स इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज रिडक्शन. वैसे ही आप आगे का सोचिए क्या होगा. पॉज, राइट डाउन द टेबल फॉर योर सेल्फ. लेट्स सी दिस. ओके,
नाइट्रोजन में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 उसको देने पड़ेंगे तब जाकर के वो 0 चार्ज होगा, so it is losing. Similarly, we have filled all the remaining, and the rule remains the same. Wherever there is loss, there is oxygen. Wherever there is gain, it is reduction. Okay. Moving ahead from here, we are getting to know another term which is called redox reaction. Redox क्या होता है? It's a simple abbreviation of reduction plus oxidation. Okay, redox, reduction plus oxidation. मतलब वो reactions जिसमें reduction और oxidation साथ साथ हो रहे हैं. It is just like a process of give and take. मतलब आपने ऑक्सीजन दिया, किसी ने ऑक्सीजन लिया, किसी ने दिया, किसी ने लिया, दोनों साथ साथ हो रहे हैं. It is a redox reaction. Let's see one example. Here is a compound called CuO, copper oxide and hydrogen. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. CuO ऑक्सीजन दे रहा है और उसी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ले रहा है. CuO कन्वर्ट होकर Cu बन गया और इसने ऑक्सीजन ले लिया और कन्वर्ट होकर के वाटर बन गया. सो वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हाउ डू वी राइट दैट? CuO इज रिड्यूस्ड, इसने ऑक्सीजन दिया ना, सो इट इज रिड्यूस्ड. एंड ऑक्सीजन लिया किसने? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन लिया और लेके क्या बन गया? वाटर. तो आपका फोकस रिएक्टेंट्स पे रहना चाहिए, प्रोडक्ट्स पे बाद में. आप रिएक्टेंट में देखेंगे कि कौन कौन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है. ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. Over here, think what has happened. Reactants की साइड में सोचो. अगर मैं देखूं तो इस सल्फर ने हाइड्रोजन दे दिया और वो सिर्फ सल्फर बन गया. SiO2 के सल्फर ने ऑक्सीजन दे दिया और सिर्फ सल्फर बन गया. रिमेंबर, हम लोग रिएक्टेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. What I can say is H2S is oxidized to H. ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीडेशन. इसने ऑक्सीजन दे दिया, इसीलिए ये रिडक्शन है. ओके, सो दिस इज हाउ वी फोकस ऑन द रिएक्टेंट. उसके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बन रहा है. ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट का नाम आपके यहाँ पे आएगा. ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी ऑक्सीडाइज टू गिव हाइड्रोजन एंड वाटर ऑल्सो. नॉट नेसेसरी. ओके, सो द प्रोडक्ट माइट बी द सेम, इट कैन बी रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज टू द सेम थिंग. आपको रिएक्टेंट्स पे फोकस करना है. लेकिन लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. I hope everyone is writing the reaction also simultaneously. अब इस केस में क्या हो रहा है? MnO2 ने ऑक्सीजन दे दिया और वो MnCl2 बन गया. सिमिलरली HCl ने भी हाइड्रोजन दिया और हाइड्रोजन दे के क्या बन गया? नॉर्मल क्लोरीन. सो वी से MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2 क्योंकि उसने ऑक्सीजन दे दिया. एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड. HCl में से H हट गया, so it is oxidized to Cl2. Okay, let's see some examples where you are trying yourself. आपको reactions दिए होंगे. You have to identify which is the product undergoing reduction, which is undergoing oxidation. Okay, कौन oxidation हो रहा है, कौन reduction in the reactants, you have to identify that. Here are the two reactions. Simple enough. Pause the video, try it yourself. So in the first case, NiO, nickel oxide, is reduced to Ni, which is nickel, and वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने ले लिया and it is oxidized to become water. In the second case, on a similar basis, Mg ने ऑक्सीजन लिया और वो MgO2 बन गया, whereas ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, एक हट गया उसमें से and it has become MgO. So this is how you are going to identify which is undergoing reduction, which is oxidation. अब यहाँ पे सारे रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा कि 2 रिएक्टेंट्स थे, एक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो एक रिड्यूस हो रहा था. बट कभी कभी ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपको एक ही रिएक्टेंट दिया होगा. इन दैट केस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होगा. शायद कोई एक ही चीज़ हो रही होगी. जैसे कि इस केस में अगर आप देखो, इन द केस ऑफ Ag2O विच इज सिल्वर ऑक्साइड, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट Ag इज गिविंग अवे ऑक्सीजन. इसने ऑक्सीजन दे दिया और वो रिड्यूस होके Ag बन गया. दैट इज ऑल यू कैन राइट, बिकॉज रिएक्टेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑक्सीडाइज हो रही है. सो दिस कैन बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चन टू कंफ्यूज यू ऑल. मूविंग अहेड, जब तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है. बट बहुत से रिएक्शंस में ये नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, Fe+S गिव्स FeS. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है. आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? टू डू दैट, यू आर गोइंग टू लुक एट द आयनिक रिएक्शन.
आयनिक रिएक्शन मतलब आप चार्ज पे फोकस करोगे। रिमेंबर हमने पढ़ा था कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी रेडॉक्स रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप चार्ज पे फोकस करोगे। कैसे? Fe और S जो रिएक्टेंट में है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दे हैव जीरो चार्जेस। बट जब वो एक कंपाउंड बन गया FeS, कंपाउंड में दिस Fe is of the charge Fe2 plus and this sulfide is of the charge S2 minus। ये जो आपके आयंस के टेबल है आपको उसमें से मिल जाएगा, राइट? सो दिस FeS is actually formed by Fe2 plus and S2 plus, which means रिएक्शन में हुआ क्या है एक्चुअली, जो रिएक्टेंट का Fe था वो कन्वर्ट होके Fe2 plus बना और जो सल्फर था वो कन्वर्ट होके S2 minus बना। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे गेन है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन है, कहाँ पे रिडक्शन है। सो Fe is losing 2 electrons, it is oxidation. S is gaining 2 electrons, it is reduction. Hence I can say Fe is oxidized to FeS, S is reduced to FeS। हो सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद में सेम प्रोडक्ट मिले क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इन दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ ये आपको आइडेंटिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेट्स ट्राई वन एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर कैटेगरी योरसेल्फ। इन दिस रिएक्शन अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई Al और S में से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ। Yes, if you have gone by the same process, then aluminium is oxidized to Al2S3 and sulfur is reduced to Al2S3. Okay, this is all that we had in the objective that we covered today, which is we will be able to understand oxidation and reduction reaction. Thank you so much everyone for engaging in this video. Have a nice day.